Hello all, welcome back to the BioRocks channel. In this video today, I'm going to explain you regarding the dialysis process. Basically, the patients who are undergoing an end stage of kidney disease are going to be put on either the kidney transplantation or the treatment of dialysis. See, what usually happens is a person has to get a donor for the kidney transplantation, okay? But in order to manage the health condition of these patients until they get the donor, they've been put under this particular treatment called as a dialysis process. Okay, so today in this video we'll be learning in detail the dialysis process, the different sorts of dialysis process. Okay, this video is going to give you 100% information regarding the dialysis which you haven't learned from your textbooks nor somewhere else. So make it sure that you're continuing watching the video in order to learn the dialysis, because this is going to basically primarily give you the whole idea regarding how are the impurities or the waste being flushed out of the blood in spite of the kidneys malfunctioning. Okay, children, I'm starting up my video by sharing my whiteboard with you all such that I can give you the clear and the detailed idea regarding this particular dialysis process. Okay, so what we are learning in this video is going to be dialysis process. Okay, and who are being put on this dialysis process are the end stage kidney failure patients. Kidney failure patients are being put on this. Sometimes what happens is persons who have suffered with a major accident, or a person who has some tumors or suffering with a cancer, are also going to have the kidney malfunction. Okay, they are also going to have the kidney malfunction. Okay, so now what happens is these ones who are suffering, who have undergone an accident or having these tumors, have undergone the kidney malfunction, are also going to be put on this particular dialysis process, children. Okay, so dialysis is basically of two different types which are being performed in the hospitals. Okay, the first one is being called as your hemodialysis process. पहले वाला जो है उसको हम लोग हीमोडायलिसिस बोलते हैं. हीमोडायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड जो किडनीज प्यूरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उस ब्लड को हम लोग एक आर्टिफिशियल किडनी के अंदर, एक आर्टिफिशियल किडनी के अंदर बेचते हैं. और ये आर्टिफिशियल किडनी क्या करता है, ब्लड को क्लीन अप कर देता है. तो अभी ये क्लीन्ड ब्लड जो है वो वाला फिर से वापस हम लोग पंप अप करते हैं हमारे पेशेंट के अंदर. तो ये वाला प्रिंसिपल चलता है आपके हीमोडायलिसिस में. ओके चिल्ड्रन, नाउ द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव, सेकेंड प्रोसेस जो है वो है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसेस. ओके, पेरिटोनियल डायलिसिस. यहाँ पर बेसिकली आइडिया जो है कंप्लीटली डिफरेंट है हीमोडायलिसिस में. हीमोडायलिसिस जो है वो आउट ऑफ द बॉडी चल रहा है. आउट ऑफ द बॉडी कैसे, बाय यूजिंग अ मशीन. ओके, that acts as an artificial kidney. पेरिटोनियल डायलिसिस में ये इनसाइड द बॉडी चल रहा है, ये वाला मैकेनिज्म. ओके, इनसाइड द बॉडी. ये कैसा होता है, आपके बॉडी में देयर इज एब्डोमेन, एंड ये एब्डोमेन का जो लाइनिंग है, एब्डोमेन का जो लाइनिंग है चिल्ड्रन, इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिटोनियम बोलते हैं. पेरिटोनियम मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोस में जब किडनी का लोकेशन बताया था, आपको पेरिटोनियम दिखाया था, बताया उसका रेट्रोपेरिटोनियल लोकेशन. ओके, इस पेरिटोनियम फॉर एग्जांपल ये पूरा आपका पेरिटोनियल लाइनिंग है. ओके, तो ये स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं. ओके, ये हुआ आपका पेरिटोनियल कैविटी. हम क्या करते हैं डॉक्टर्स, एक्चुअली ये यहाँ पर एक कैथेटर को फिक्स कर देते हैं, एक ट्यूब को फिक्स कर देते हैं ऑपरेट करके. अगर कोई पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस पे रखना है तो एक हफ्ता या 10 दिन पहले, 10 डेज बिफोर ही क्या करते हैं वो लोग, इनको एक छोटा सा सर्जरी करके उनके पेरिटोनियल कैविटी में एक कैथेटर को फिक्स कर देते हैं. दिस इज कैथेटर, दिस ट्यूब is called as catheter. Okay, अभी ये क्या करते हैं,
ये कैथेटर के थ्रू वो लोग एक फ्लूइड को पंप अप करते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, एंड इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। ओके, ये डायलाइजिंग फ्लूइड है। सो ये कैथेटर से हम लोग फ्लूइड को पंप करेंगे और क्या करते हैं, हमारा जो ब्लड के अंदर, जो हमारे ब्लड के अंदर इम्प्यूरिटीज है, उनको हम डिफ्यूज करवाते हैं डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर, और इस डायलिसिंग फ्लूइड को यूज होने के बाद वो यूज्ड वाला जो है हम लोग बाहर पंप आउट कर देते हैं। इसको मैं डिटेली आपको अभी समझाऊंगी, ये सिर्फ इंट्रो पार्ट है आपके लिए। तो याद रखिए कि पेरिटोनियम जो है आपके एब्डोमिनल कैविटी का लाइनिंग है, और इस के अंदर हमको एक कैविटी है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकली एक कैथेटर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पर, और जब भी पेशेंट को डायलिसिस परफॉर्म करना होता है, उसमें क्या होता है, इस कैथेटर को हम लोग एक डायलाइजिंग फ्लूइड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और डायलाइजिंग फ्लूइड को अंदर पंप करते हैं, और फ्लूइड के अंदर और ये ब्लड के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है उसके डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर पंप हो जाते हैं, और बाद में 4-5 घंटों के बाद जब ये पूरा इम्प्यूरिटीज डायलिसिंग फ्लूइड में आने लगते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं। ओके, याद रखना कि हीमोडायलिसिस प्योरली क्लिनिक में ही चलेगा, हॉस्पिटल्स में ही अंडर ऑब्जर्वेशन चलता है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो आप काम करते करते आप ऑफिस में भी कर सकते हो, नहीं तो आप आपके घर पे भी कर सकते हो, जब आप सो रहे हो स्लीपिंग टाइम पे भी आप कर सकते हो। आपको ज्यादा तकलीफ का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको ये कैथेटर प्लेस करने की वजह से और फ्लूइड्स पंप करने की वजह से हाँ थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं यहाँ पर, लेकिन उतना पेनफुल नहीं है जितना हम हीमोडायलिसिस को कंपेयर करते हैं चिल्ड्रन। सो फर्स्ट आई एम कमिंग टू द process which is being called as हीमोडायलिसिस। इसको हम लोग अभी डिटेली देखते हैं हीमोडायलिसिस होता क्या है। सो हमने पहले ही बोला है, जो हमारा पेशेंट है जिनमें किडनी मैल फंक्शन है, एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज है, उस पेशेंट का हम लोग क्या करते हैं इज वी आर गोइंग टू टेक देयर इम्प्योर ब्लड लेते हैं। ओके, कैसे, थ्रू हिज आर्टरी फ्रॉम द आर्म, कभी कभी आर्म से भी ले सकते हैं हम लोग, कभी कभी लेग से भी लेते हैं। ओके, कन्वीनियंस के हिसाब से। तो आर्टरी से हम लोग इम्प्योर ब्लड लेते हैं और इसको हम लोग किधर डालते हैं, आर्टिफिशियल किडनी में डालेंगे। और हमारा ये जो आर्टिफिशियल किडनी है, ये एक मशीन है जो हम लोग इसको बोलते हैं डायलाइजर बोलते हैं बच्चों। अभी मैं दिखाऊंगी आपको डायलाइजर को। तो ये डायलाइजर जो है उसके अंदर हम लोग डालते हैं। एक्चुअली आपके डायलाइजर या डायलाइजिंग मशीन जो है, ये जो dialyzer hai, it's like a small cylindrical structure what we are going to have. It has two pipes here, two lines here. एक artery को connect करने के लिए एक line है यहाँ पर, one is artery line connect करने के लिए है, और दूसरा होता है आपके vein को connect करने वाला line होता है। और इसके अंदर बच्चों यहाँ पर you can see they are going to be very fine thin tubes. Actually we can call them as membranes also. Okay, very thin tubes are there here. Okay, this is the dialyzing tubes are there inside. Okay, which is equivalent to what? It is equivalent to a membrane. Okay, so you what is present in this tube is going to be dialysate, or what we call is a dialysing fluid. Okay, dialysing fluid, or we can even call it as dialysate fluid. We are going to usually call it as a dialysate fluid. तो हमारे आर्टिफिशियल किडनी है, डायलाइजर जो ये ट्यूब आप देख रहे हो, उसमें दो लाइंस है आपका, जो आप आर्टरी के साथ कनेक्ट करते हो और वेन के साथ कनेक्ट करते हो पाइप्स के थ्रू, और इसके अंदर रहते हैं फाइन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमारे ट्यूब्स है, जो मेम्ब्रेन्स है। एक्चुअली ये बहुत पोरस रहते हैं, बहुत पोरस, और इसके अंदर रहता है क्या, डायलिसेट फ्लूइड रहता है। तो हमारा मैकेनिज्म कैसा चलता है इस हमारे आर्टरी लाइन के साथ हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ओके, तो इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आता है, और क्या होता है इसको आप याद रखिए कि हम लोग यहाँ पर जो ये डायलाइजर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ आयॉन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं
डिफ्यूजन की वजह से। ओके, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द वन पाइप, द मेम्ब्रेन व्हाट दैट इज द ट्यूब व्हाट आई एम टॉकिंग। इसमें क्या रहता है, इस एक तरफ से आप ब्लड को पंप करते हो। ओके, यहाँ से आ रहा है आपका ब्लड चिल्ड्रन। कौन सा ब्लड आ रहा है, आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है, पंप आउट कर रहे हैं। और बीच में क्या रहता है, एक थिन मेम्ब्रेन रहेगा यहाँ पर, देयर विल बी अ थिन मेम्ब्रेन। और इस तरफ रहेगा आपका, जो मैंने बात किया है, आपके डायलाइजिंग ट्यूब रहेगा। तो ये मेरा रहा डायलाइजिंग ट्यूब, ये जो पतले पतले ट्यूब्स देख रहे हो, तो उस ट्यूब के अंदर अभी यहाँ पर क्या होता है, आपके डायलाइजिंग फ्लूइड को पंप किया जाता है, डायलाइजिंग फ्लूइड को। तो आप देखिए, आपका ब्लड फ्लो बेसिकली इज टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, और आपका डायलाइजिंग फ्लूइड, तो इस तरफ से कौन पंप किया जा रहा है, आपके डायलिसेट फ्लूइड को पंप किया जा रहा है, एंड यहाँ से आपका ब्लड को पंप किया जा रहा है। सो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं। रिमेंबर दैट आपके ब्लड में यूरिया है, आपके ब्लड में यहाँ पर कौन है, यूरिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, आपके डायलिसिक फ्लूइड में देयर इज नो यूरिया प्रेजेंट। सो व्हाट हैपेंस नाउ इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन के वजह से यूरिया जो है इधर मूव कर देता है। तो नाउ स्लोली यूरिया कम्स ओवर हियर, बाय व्हिच प्रोसेस, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस इट एंटर्स हियर। सो नाउ ये जो आ रहा है फ्लूइड, इसको कलेक्ट किया जाता है, वो इसको हम लोग बोलते हैं यूज्ड डायलिसेट फ्लूइड कलेक्टर। ओके, यूज्ड डायलिसेट फ्लूइड कलेक्टर यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्रेश वाला डायलिसेट को, फ्रेश डायलिसेट फ्लूइड को यहाँ से हम पंप कर रहे हैं। ओके, ये होता है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट चिल्ड्रन, दिस इज इक्विवेलेंट टू योर यूरिया। ओके, और इस तरफ से हम इम्प्योर ब्लड डाल रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं इम्प्योर ब्लड को, पेशेंट के आर्टरी से लेकर आ रहे हैं। और ये पंप किया जाएगा कहाँ पर, ये पंप किया जाता कहाँ पर है, ये पंप किया जाता है आपके वेन के अंदर। ये पंप करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे इसके अंदर इसको हम लोग एंटीकोगुलेंट जो प्रोटीन है हमारा हेपारिन, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं ब्लड के अंदर। देन इट्स बीन पम्प्ड इनटू दिस पर्टिकुलर डायलाइजिंग that is a dialyzer which is present. So यहाँ पर ये basic फंडा चलता है. Okay, so now what I'll show is, I'll show you this particular basic thing of an image दिखाऊंगी आपको, तो आपको अच्छा सा समझ में आएगा. So let me again share my screen with you now, such that I can show you that image of hemodialysis. Okay, hemodialysis. So let me show you this one. So this is the image, children. You can see that the arm से उनका एक पाइप से, आर्टरी से आपका ब्लड को पंप किया जा रहा है. ये होल वाला जो है ये मशीन नहीं है, ये वाला है जो डायलाइजर है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. ये ट्यूब आप देख सकते हो, ये व्हाइट वाले फाइबरस थिंग्स जो आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं, वो है आपके डायलाइजिंग पाइप्स या मेम्ब्रेन्स है. ओके, और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो है डायलिसेट फ्लूइड. अगर ब्लड इधर से इस डायरेक्शन में जाता है तो आपका डायलिसेट फ्लूइड विल बी पम्प्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. डिफ्यूजन प्रोसेस के वजह से यूरिया, पोटेशियम और जितने भी क्रिएटिनिन या जितने भी चीजें हैं जो अनवांटेड थिंग्स है हमारे ब्लड के अंदर, वो डिफ्यूज होते हैं किसमें, आपके डायलिसेट फ्लूइड के अंदर. और डायलिसेट को, इम्प्योर वाले को या यूज्ड वाले को दूसरे साइड से पंप आउट किया जाता है. So this is your dialyzer. Okay, so now what I'll do is I will show you the image of the dialyzer, children. तो ये वाला है आपका डायलाइजर जो हम लोग मशीन को फिक्स करते हैं. और आप देख सकते हो कि दोनों ही तरफ लाइंस है. यहाँ पर हम लोग यूजुअली लाइंस बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोग पाइप को इंसर्ट करते हैं. ओके, सो ये वाला होगा आपका आर्टरी का लाइन और ये वाला होगा आपका वेन का लाइन होता है. तो ये है आपका डायलाइजर. नाउ लेट मी शो यू इंटरनली आपका ये जो डायलाइजर है उसके अंदर जो फाइबर्स है वो कैसे रहते हैं. ओके, सो दीज आर द थिन फाइबर्स. कैन यू सी children how thin fibers these are? Okay, so these fibers are the ones which are present in your dialyzer. So ये वाले हैं जो membranes के जैसे काम करते हैं और यही membrane है जो आपको diffusion करवाता है. Okay, so this is a membrane which has been present and these are the ones. Okay, so now let me come and show you and explain you the other process.
For that, I'll choose my whiteboard, children. Give me a second for that. Okay, so remember, hemodialysis करने के लिए it needs some 4 to 5 hours. Some 4 to 5 hours. Let me write it on the board here in the last, in the last page that we have used, such that it can be helpful for you. Hemodialysis जो है 4 to 5 hours लगेगा, और वो भी 3 times a week करना पड़ता है, 3 times a week करना पड़ता है. लेकिन चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू, इस प्रोसीजर के लिए आपके आर्म्स के अंदर नीडल्स हैव टू बी प्रिक्ड अप, और इनके नीडल्स के गेज जो है बहुत बड़ा रहता है, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर. ओके, सो हम लोगों को क्या करना पड़ता है इज यूजुअली डॉक्टर्स एवरी टाइम आर्टरीज जो डीप सीटेड है उनको पिक करना और इंजेक्ट करना, या दैट इज इंसर्टिंग अ नीडल इज गोइंग टू बी अ बिग प्रोसीजर, पेनफुल प्रोसीजर फॉर द पेशेंट टू. सो ये लोग क्या करते हैं, कुछ ग्राफ्स बनाते हैं यहाँ पर. ओके, let me see, I have got this image for you. तो याद रखिए, हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के आर्टरी और वेन को कनेक्ट करते हुए हम लोग एक आर्टिफिशियल पाइप यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग ग्राफ्ट बोलते हैं. यूजुअली आपके आर्टरीज में जो प्रेशर है वो हाई है और फ्लो भी बहुत है, और आपके वेन्स में लो प्रेशर है, लो फ्लो है. तो इन दोनों को कनेक्ट करते हुए ग्राफ्ट को इंसर्ट किया जाता है, जिसके वजह से ये ग्राफ्ट एनेबल करता है कि प्रेशर इज मेंटेन एंड इनफ ब्लड इज बीइंग pumped into the dialyzer such that the blood is going to be filtered as usually as it is getting filtered in the kidney, children. ये ग्राफ्ट होता है. तो नेक्स्ट टाइम हम प्रोसीजर करेंगे तो ग्राफ्ट को इंसर्ट करके करते हैं. ओके, नीडल्स को. नेक्स्ट होता है हमारा फिस्टुला. फिस्टुला में क्या है, हम लोग आर्टरी और वेन को जॉइंट कर देते हैं. ओके, एंड वी आर गोइंग टू इंजेक्ट द नीडल्स इनटू दिस पर्टिकुलर फिस्टुलर एरिया ओनली. ओके, दैट इज अ रेडीमेड थिंग which is being made. So one is going to be the graft and the other one is going to be fistula. Okay, now what I'll do is I'll introduce you with the peritoneal dialysis process, children. Okay, I'm sharing my whiteboard with you. Now let me come to this particular next page and explain you regarding the peritoneal dialysis process. Okay, इसमें the basic funda is going to be, this is your abdominal cavity. Okay, इस abdominal cavity के अंदर it's been lined up by what is peritoneum. This is your peritoneal lining. Peritoneal lining. अभी इस लाइनिंग के अंदर क्या है हमारे पास, is the cavity. This cavity is being called as your peritoneal cavity. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस करने के एक हफ्ता या 10 दिन पहले ही एक छोटा सा सर्जरी करके एक थिन पाइप को इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर, और ये पाइप को हम लोग बोलते हैं क्या, कैथेटर. सो हम लोग इसको बोलते हैं कैथेटर. ओके, सो हम क्या करते हैं यहाँ पर, वी विल हैव फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड रहता है विच इज इक्विवेलेंट टू द डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन. ओके, ये पूरा आपका डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन हो सकता है और इक्विवेलेंट टू द ग्लूकोज सोल्यूशन है, जिसके अंदर बिल्कुल भी यूरिया नहीं है. तो हम लोग अभी ले रहे हैं हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड ले रहे हैं, और क्या करते हैं, इसको हम लोग पंप करते हैं कहाँ पर, इस आपके पेरिटोनियल कैविटी में. सो आपके पेरिटोनियल कैविटी में कौन आ गया है अभी, इज गोइंग टू बी द डायलाइजिंग फ्लूइड आ गया है. ये हम लोग फिलअप कर देते हैं. फिलअप करने के बाद क्या करते हैं, इस आपके पेरिटोनियल कैविटी में कौन लाइन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या रहेगा, इज नथिंग बट द कैपिलरीज रहेंगे. राइट, दे आर बीन लाइंड अप बाय ब्लड वेसल्स, सो दे आर गोइंग टू ऑब्वियसली हैव द कैपिलरीज है. तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका डायलाइजिंग फ्लूइड इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड प्रेजेंट इन द कैपिलरीज, जिसकी वजह से क्या होता है, आयॉन्स get diffused from this particular blood. So blood से जो यूरिया है वो वाला डिफ्यूज हो रहा है, पोटेशियम डिफ्यूज हो रहा है, और क्रिएटिनाइन जो है वो वाले भी यहाँ पर डिफ्यूज हो रहे हैं. तो कहाँ से कहाँ हो रहा है, आपके कैपिलरी से. यहाँ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के जैसा कौन काम कर रहा है, आपका पेरिटोनियल लाइनिंग काम कर रहा है, किसके मीन्स
किसके जैसा काम कर रहा है यहाँ पर? इट इज वर्किंग एज अ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के जैसा काम कर रहा है. See the innovation, how superb it is that just using your peritoneal lining, we are trying to diffuse unwanted things from the blood which is present in the capillaries into this particular peritoneal cavity, that is which is filled with the dialysing fluid. So ये procedure होने के बाद क्या हो रहा है? आपका dialysing fluid जो है वो वाला पंप आउट होना चाहिए. सो ये है आपका फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड चिल्ड्रन. एंड अभी जो यूज्ड वाला है उसको हम लोग पंप आउट कर देते हैं बाहर. तो ये हो जाता है आपका यूज्ड dialyzing fluid जो है which is equivalent to the urine is being pumped out. Okay, ये procedure यहाँ पर चलता है. And remember children, peritoneal dialysis जो है इसका procedure चलता है 4 to 6 hours तक चलता है. Okay, 4 to 6 hours. आप ये खुद से कर सकते हो. जैसे मैंने बोला है ये ऑफिस में आप बैठे बैठे कर सकते हो काम करते करते, या घर पे भी कर सकते हो, या आप सोते सोते भी ये प्रोसेस कर सकते हो. ये इतना प्रॉब्लमेटिक प्रोसीजर नहीं है जितना आप हीमोडायलिसिस में देखते हो. हाँ, लेकिन इसका साइड इफेक्ट्स ये है, जो साइड इफेक्ट्स है यहाँ पर, लेट मी कम टू दिस पर्टिकुलर साइड इफेक्ट्स चिल्ड्रन आई एम स्पीकिंग अबाउट. सो ये साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इस आप पेशेंट विल complain a severe headache और fluids pumping करने के वजह से they will be having a loss of appetite also. This will be the major problem here. Okay, so these are the things that we can see. और दूसरा चीज जो ऑपरेट करके कैथेटर यहाँ पर प्लेस किया गया है, स्किन के ऊपर बहुत सारे रैशेस डेवलप हो जाते हैं. So this is also an allergic thing that is going to be seen in these patients. Okay, so this is peritoneal dialysis. So remember that हमारा basic idea डायलिसिस में ये है कि हम लोग हमारे ब्लड के अंदर के इम्प्यूरिटीज जो है उसको हम लोग एक मेम्ब्रेन के थ्रू पंप करेंगे दूसरे एक फ्लूइड के अंदर जहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन है या नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज है बच्चों. सो दिस इज अ बेसिक आइडिया बिहाइंड आवर डायलिसिस. सो इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ब्लड विल बी स्लोली डिफ्यूजिंग फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन इनटू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो इस तरफ आपके इम्प्यूरिटीज है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, इस तरफ है लो कॉन्सेंट्रेटेड. सो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से वो चले जाते हैं बाहर. तो ये प्रोसीजर है. लेकिन याद रखिए जब जब हमको ग्राफ्टिंग करना हो, okay, grafting karna hai, and that is the next one is going to be what? It's going to be the fistula. So ye wala hum log ek 10 दिन हफ्ता पहले ही एक छोटा सेशन होता है हॉस्पिटल में जहां पर ये ग्राफ्ट किया जाता है या फिस्टुला किया जाता है. याद रखिए हर डायलिसिस, हर हीमोडायलिसिस प्रोसीजर के पहले पेशेंट को, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट इनका जो नीडल्स है उनका गेज जो है थोड़ा बड़ा है जिसके वजह से ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेन ये क्या करते हैं यहाँ पर लाइडोकेन को यूज करते हैं जो उस ग्राफ्ट के साइट को नंब कर देता है. ओके, नंब कर देता है जिसके वजह से पेशेंट को टेम्पररीली पेन का what you call is a sensation जो है बहुत कम हो जाता है बच्चों. This is very very important. Okay, so शायद let me hope like I have made it clear for you children. So let me come back to the pages that I have taught you today. So yeah, so this was the dialysis कौन से patients में किया जाता है और कितने टाइप्स के हैं, ये आउट ऑफ द बॉडी चल रहा है, ये इनसाइड द बॉडी चल रहा है. यहाँ पर हम आर्टिफिशियल किडनी के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो वाला है हमारा डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, डायलाइजिंग ट्यूब्स के, और यहाँ पर हमारा पेरिटोनियल कैविटी ही एक डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के जैसा काम कर रहा है. ओके, और क्या देखा था हम लोग इज वी हैव इवन सीन दैट the one is going to be the last so let me come to the last page. ये वाला simple diffusion पे काम कर रहा है, impurities को diffuse out कर देता है. There should be a compulsory presence of a membrane children. Okay, hemodialysis में membrane कौन है? आपका dialyzing tube का.
और इसमें कौन है, पेरिटोनियल डायलिसिस में आपका पेरिटोनियल लाइनिंग ही है। तो ये प्रोसीजर हमको कभी करना पड़ रहा है जब आपको किडनी मैल फंक्शन है और बहुत सिवियरिटी है, तो तभी जाके हम लोगों को ये प्रोसीजर करना पड़ता है, दैट इज डायलिसिस प्रोसेस। ओके, लेट मी सी इफ आई हैव सम अदर इमेजेस फॉर यू to show. Okay, so next one is yeah, peritoneal yeah, पेरिटोनियल वाला एक बार दिखा देती हूँ आपको। सो देखिए यहाँ पर यू कैन सी दैट दिस इज योर पेरिटोनियल कैविटी। हमने कैथेटर को इंट्रोड्यूस किया है, हम डायलिसिस सॉल्यूशन बैग लेते हैं। और हाँ, और एक बात बताना है बच्चों की, ये याद रखिए कि यहाँ पर जो प्रोसीजर चल रहा है पेरिटोनियल डायलिसिस में, हम लोग इसको बोलते हैं एक्सचेंज। इस प्रोसीजर को बोलते हैं एक्सचेंज। क्यों एक्सचेंज बोलते हैं? बिकॉज हम लोग कहाँ से जा रहे हैं इस या हम लोग कहाँ से जा रहे हैं इज लाइक रिमेम्बर, हम लोग इम्प्योरिटीज को यहाँ से डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वी कॉल दिस प्रोसीजर इज बीइंग कॉल्ड एज एक्सचेंज प्रोसीजर। सो हम लोग यहाँ से फ्रेश डायलिसिंग ग्लूकोज सॉल्यूशन जैसा सॉल्यूशन को फिलअप कर देते हैं। यहाँ के ब्लड वेसल्स के अंदर का ब्लड का इम्प्योरिटीज डिफ्यूज हो जाते हैं फ्लूइड के अंदर, और वो यूज्ड डायलिसिंग फ्लूइड को जो है हम लोग कलेक्ट कर देते हैं आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स के बैग के अंदर, उसको डंप किया जाता है। ओके, दिस इज दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। ओके, सो बच्चों मैं समझती हूँ आपको समझ में आया हो इसके बारे में, and I've shown you those apt images too. So I request you all to just work out on this particular procedure, and almost all the other videos that I have taught you, this will be helping you in cracking your examinations. Because remember that 5 minutes ka video, 4 minutes ka video we can also make, but that is not going to give you a whole idea regarding the concept. So concept aana bahut zaruri hota hai for the medical entrance examinations, because there are no direct questions asked to you, so you have to be ready for everything for the competitive examinations. I hope you understood my point. I hope you all like the information. Please, if you like this video, hit the like button for sure and give your comments, which are going to be boosting for us, and try to share this video with your friends and the near ones. That will be helping them too. Okay, thank you very much children, thank you all, thank you.